اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی بہت ساری آیتوں کے اندر نوجوانوں کو خاص کر کے مخاطب فرمایا ہے. یہ جو آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ قیامت کے دن تم سے نعیم کے بارے میں پوچھے گا. نعیم کی تفسیر کرتے ہوئے کئی اقوال بیان کرتے ہوئے مفسرین فرماتے ہیں نعیم سے مراد ایک قول یہ بھی ہے اللہ قیامت کے دن تمہاری جوانی کے متعلق تم سے سوال فرمائے گا. حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی زمین کو حکم دے گا، زمین انسان کے قدموں کو پکڑ لے گی اور اس وقت تک انسان کے قدم کو چھوڑے گی نہیں زمین جب تک کہ وہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے دے. ایک سوال تو یہ ہوگا کہ تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری، دوسرا سوال یہ ہوگا تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری. حالانکہ زندگی میں تو شباب بھی آ گیا، لیکن خاص طور پر جوانی کی اہمیت بتاتے ہوئے اللہ رب العزت پوری زندگی کے متعلق پوچھنے کے بعد مولا یہ بھی فرمائے گا تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری. اس کے بعد یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا اور اپنے علم پر تو نے کتنا عمل کیا. جب تک کہ یہ 4 سوالوں کے جواب کوئی انسان نہیں دے دے گا اس وقت تک کہ زمین اس کے قدم کو نہیں چھوڑے گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر صبح کو کوئی جوان عبادت کرتا ہے تو اس بوڑھے پر اس کی فضیلت ایسے ہو جاتی ہے جیسے کہ مرسلین کو اللہ نے عوام پر فضیلت عطا فرمائی ہے. رسولوں کو اللہ نے عام لوگوں پر جو فضیلت دی ہے بوڑھوں پر جوانوں کی فضیلت ایسے ہے. عبادت کرنے والوں کی جوانوں کی میرے آقا فرماتے ہیں جو جوان صبح کو عبادت میں گزارے وہ لوگوں بوڑھوں پر ایسی فضیلت رکھتا ہے جیسے اللہ نے مرسلین کو عوام پر فضیلت عطا فرمائی ہے. ظاہر سی بات ہے اسلام میں جوانی کی اتنی اہمیت ہے کہ جوانوں کی عبادت اور جوانی کی عبادت کو بہت اہمیت دی گئی ہے. یہاں تک فرمایا گیا بوڑھوں کی عبادت پر جوانوں کی عبادت کو فضیلت ہے. اس طریقے سے میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی جوان عبادت میں اپنی زندگی کو اور جوانی کو گزارے آقا فرماتے اللہ اسے 70 صدیقین کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. اس طریقے کی بے شمار روایتیں موجود ہیں. ظاہر سی بات ہے یہ ساری باتیں غیر بھی تو سنتے ہیں اپنے بھی تو سنتے ہیں. مغربی تہذیب نے پلان کیا اگر قوم مسلم کو تباہ کرنا ہے اور تباہی کے دہانے تک پہنچانا ہے تو پھر ان کو فرنگی تخیلات کے اندر ڈبو دو، ان کے تخیلات اور تصورات کو مغربی تہذیب کا دل ڈالا بنا دو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ نوجوان جو کل تک کے اپنی روایات کا پابند تھا، کل تک جو اللہ کی عبادتوں کا پابند تھا، کل تک جو تسبیح و تحلیل کا پابند تھا، کل تک جو حیا کا پابند تھا، آج نوجوانوں کی پوزیشن یہ ہو گئی مغربی تہذیب نے ہمارے دماغ کے اندر ایسا اندھیرا پیدا کر دیا، ایسی تاریکی پیدا کر دی کہ اللہ اکبر اب عبادت کی طرف جانے میں لوگوں کو شرم آتی ہے، لوگوں کو حیا آتی ہے. گویا کہ آج کا مسلمان اور بالخصوص نوجوان جب بھی کسی کام کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے یہ عمل کرتا دیکھ کر کے لوگ کیا سوچیں گے، چہرے پہ داڑھی دیکھ کر لوگ کیا سوچیں گے، سر پہ ٹوپی دیکھ کر لوگ کیا سوچیں گے، امامہ سر پہ دیکھ کر لوگ کیا سوچیں گے. لیکن انسان یہ تصور بھول جاتا ہے لوگ کیا سوچیں گے ان کی ریمارک کے حوالے سے انسان بے چین ہے. قبر میں لوگ تیرے ساتھ نہیں آئیں گے، قبر میں تو تجھے اکیلے جانا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چاروں طرف سے مغربی تہذیب نے، مغربی یلغار نے مسلم نوجوانوں کو گھیر لیا ہے. گناہوں کے دلدل میں ہمارا جوان پھنستا جا رہا ہے. کل تک یہ بات کہی جاتی تھی گناہ ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہے ہیں، مگر اب گناہ دروازے پہ دستک نہیں دے رہے ہیں. بغیر دستک کے گویا کے گناہ ہمارے شبستانوں میں داخل ہو چکے ہیں. لاشعوری طور پر ہم کھانا کھائیں تو گناہ کرتے ہوئے، ہم بستر پر لیٹے تو گناہ کرتے ہوئے، ہم چلے تو گناہ کرتے ہوئے، ہم سفر کریں تو گناہ کرتے ہوئے. کسی بہت بڑے صوفی نے کہا تھا انسان ہزاروں نفلی حج کر کے، ہزاروں رکعتیں نفل نماز پڑھ کے یا ہزارہا نفلی عبادت کر کے وہ مرتبہ نہیں پا سکتا جو ایک صغیرہ گناہ سے بچ کر انسان مرتبہ پا لیتا ہے. اس لیے کہ اگر انسان نے نفلی
ये न पूछा जाएगा कि तूने वो नफली इबादत क्यों छोड़ी, लेकिन एक सगीरा गुनाह से बचना भी तो वाजिब है। इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया कि गुनाह से बचने पर जो अज्र मिलता है वो नफली इबादत पर नहीं मिलता। और आजकल हम नवाफिल पर ज्यादा जोर दे करके अपने आप को गुनाह से कम बचा पा रहे हैं। हाथों में तस्बीह है लेकिन जबान पर गाली भी तो है, हमारे चेहरों पे दाढ़ियां हैं मगर आंखें आवारा भी तो है, हम नमाज के पाबंद बनते हैं, पेट में हराम लुकमा भी तो है। गर्ज के हमारी सोच और फिक्र बदल दी गई है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब जवानी की इबादत जो है, आलमे शबाब जो है, इंसान की जिंदगी का कीमती सरमाया है, तो इन्हीं जवानी के लम्हात के अंदर इंसान ज्यादा से ज्यादा मसाइल से दो चार होता है और बहुत सारे मसाइल में वो घिर जाता है। मैं सरसरी तौर पे जितना वक्त मेरे पास है उस वक्त में अल्लाह बरकत दे और उतने टाइम में चंद जवानों के मसाइल और उनका हल पेश करने की सआदत हासिल करूंगा। ये हल मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि अपने बुजुर्गों की रहनुमाई की बुनियाद पे पेश करना चाहता हूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब कोई बंदा जवानी की दहलीज पर कदम रखता है तो उसके लिए सबसे पहला मसला यह आता है कि वो दोस्ती किससे करे, वो किसको अपना दोस्त बनाए। यहां पर इंसान बहुत बड़ी घाटी के अंदर जाकर के गिर पड़ता है। दोस्त किसको बनाए, इसलिए कि आमतौर पर दोस्त बनाने का मेयार क्या है, किसी का चेहरा खूबसूरत हो वो दोस्त बने, किसी के पास माल हो वो दोस्त बने, किसी का कारोबार अच्छा हो वो दोस्त बने, किसी का खानदान अच्छा हो वो दोस्त बने। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेयार दोस्ती ये है, दौलत होनी चाहिए, माल होना चाहिए, समाज में नाम होना चाहिए। इस तरीके से इंसान दोस्त तलाश करता है और अक्सर आज तो दोस्ती का मेयार यह है कि जहां पर दौलत होगी वहां लोग ज्यादा दोस्ती बनाने की कोशिश करते हैं ताकि बुरे वक्त में ये दोस्त मेरे साथ आ सके, मेरे काम आ सके। मगर याद रखें, हम दोस्त बनाने की कोशिश तो करते हैं मगर इस्लामी कानून के मुताबिक हम दोस्त नहीं बनाते। नतीजा ये होता है कि दोस्त जो है वो माअज़ल्लाह कभी हमें धोखा दे देते हैं, कभी साथ छोड़ देते हैं, कभी अल्लाह अकबर दोस्त ही दुश्मन बन जाते हैं, कभी दोस्त ही बिगाड़ का जरिया बन जाते हैं, कभी दोस्त ही अल्लाह अकबर जिना के अड्डे, शराब के अड्डों तक ले जाने का जरिया बन जाते हैं, कभी दोस्त ही ताश के पत्ते और जुओं तक ले जाने का जरिया बन जाते हैं। दोस्त किसे बनाया जाए? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सच्चा दोस्त वो है जब तू खुदा को भूल जाए तो वो तुझे खुदा की याद दिलाए, जब तू गुनाह करे तो वो तुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत का डर दिखाए, तुझे खुदा की खशियत की तरफ बुलाए। सुन लो, गुनाहों के अड्डों की तरफ ले जाने वाला कभी तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता, इसलिए कि जो गुनाह की तरफ ले जा रहा है, जो जहन्नम की राह की तरफ ले जा रहा है, वो दोस्त नहीं है बल्कि दुश्मन है। और अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू, जितने तुम्हारे दोस्त हैं कयामत के दिन वो सब के सब तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। वो दोस्त जो तुम्हें लड़कियों की मोहब्बत के हवाले से उभारते हो, वो दोस्त जो तुम्हें जिना के अड्डों तक ले जाते हैं, वो दोस्त जो तुम्हें अपनी कसमें दे दे करके शराब पिलाते हो, वो कभी दोस्त नहीं हो सकते। वो बदतरीन दुश्मन है। सच्चा दोस्त वो है जो तेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करे। सच्चा दोस्त वो है जो तुझे मस्जिद तक ले जाए। सच्चा दोस्त वो है जब तेरे कदम डगमगा जाए तो वो तेरा हाथ पकड़ कर सिरात मुस्तकीम का मुसाफिर बना दे। ऐसा दोस्त दुनिया में भी फायदेमंद है और कुरान कहता है कयामत के दिन ऐसा दोस्त तुम्हें काम आएगा। तो दोस्ती के लिए मसला होता है, हम मालदार दोस्त ढूंढते, खूबसूरत दोस्त ढूंढते नहीं। दोस्त ऐसे ढूंढो जिनके दिल में अल्लाह की खशियत हो, जिनके दिल में रसूल पाक की मोहब्बत हो, जो बुरी आदतों का शिकार ना हो। इसलिए कि अच्छी सोहबत अच्छे अमल से बेहतर है और बुरी सोहबत बुरे अमल से बदतर है। फरमाया गया, अगर कोई बंदा इत्र फरोश की दुकान पर बैठे
इत्र वाला उसको इत्र ना भी दे तो दुकान पर बैठने से कम उसको खुशबू तो मिलेगी। और अगर कोई कोयले की या लोहार की दुकान पर बैठे तो वो उसको आग से ना जलाए तो कम से कम भट्टी के असरात तो उसके वजूद पर पड़ेंगे। और बुजुर्गों ने फरमाया बुरा दोस्त कोयले की तरह है, अगर जल रहा हो तो वो हाथ को जख्मी कर देगा, जला देगा, और अगर ठंडा है तो कम से कम वो हाथों को काला जरूर कर देगा। यही कैफियत है अच्छे बुरे दोस्तों की। लेकिन आज दोस्ती का हाल क्या है? मफाद परस्ती है दोस्ती, मोहब्बतें खत्म हो गई। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं सच्चा दोस्त वो है अगर उसके कंधे पर कोई हाथ रख करके कहे चल, अगर वो पूछता है कहां, फरमाते वो दोस्त नहीं हो सकता। सच्चा दोस्त वो है कि किसी ने कंधे पे हाथ रख के कहा चल और वो चल पड़े, उसी को दोस्ती कहते हैं। आज ऐसी दोस्ती कहां है? आप ऐसी दोस्ती तलाश कीजिए। क्यों? इसलिए कि दीनी कानून के मुताबिक हम दोस्त तलाश नहीं कर रहे हैं। और याद रखें, हम अपने बच्चे भी दोस्ती किससे कर रहे हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं, बल्कि माअज़ल्लाह अब तो हाल ये है कि फुस्साक और फुज्जार के साथ साथ लोग कुफार से भी दोस्ती करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अच्छी तरह याद रखना, इंसान जिसके साथ उठता बैठता है उसके किरदार का असर इंसान पे जरूर पड़ता है। ये बहुत लंबा उन्वान है, इसलिए इसकी तरफ बहुत जो है वो तफसील से नहीं जा सकते। दूसरा मसला जवानों के लिए ये होता है कि वो जवानी की दहलीज पर पहुंचने के बाद जब अच्छे दोस्तों का इंतखाब नहीं कर पाता तो वहीं से उसका बिगाड़ शुरू होता है। फिर कभी वो शराब का आदी हो जाता है, कभी वो नशे का आदी हो जाता है, फिर कभी अल्लाह अकबर वो नशे की गोलियां लेने लगता है, कभी माअज़ल्लाह वो ड्रग वगैरह इस्तेमाल करने लगता है, फिर वो नशे के अंदर डूब जाता है। क्योंकि बुरे दोस्तों की सोहबत, पहले तो उसको एक घूंट शराब का पिलाया जाता है, कभी उसको सिगरेट पिलाई जाती है, कभी उसको नशे की माअज़ल्लाह अलग अलग अंदाज से फवाइद बताए जाते हैं, और छोटी सी उम्र में इंसान शैतान के आगे इग़वा हो जाता है, शैतान के जाल में फंस जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं शराब बुराइयों की माँ है। अब उसको यूं कह लीजिए कि नशा बुराइयों की माँ है। अल्लाह अकबर, नशा के जितने तरीके हैं वो इंसान को तबाही की तरफ ले जाते हैं, इंसान को तबाही के दहाने पर ले जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं एक जवान पर एक औरत फरेबता हो गई, एक औरत उसके हुस्न का शिकार हो गई और उसके हुस्न की फरेबी के अंदर मुब्तला हो गई। ऐसे में उस औरत ने किसी बहाने से उस मर्द को अपने घर में बुलाया। जैसे वो मर्द आया, दरवाजे पर ताले लगते चले गए। जब वो अंदर आया तो उस औरत ने कहा एक काम करो, या तो मेरे बच्चे को कत्ल करो, या तो मेरे साथ जिना करो, या तो फिर शराब पी लो। उसने सोचा जिना तो बड़ा बदतरीन जुर्म है, जिना क्या है? अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह अकबर, जिना करने वालों को 3 नहुसतें दुनिया में लगती है। जिना करने वाले 3 नहुसतों का शिकार होते हैं, दुनिया के अंदर 3 मुसीबतों का शिकार होते हैं। सबसे पहली मुसीबत जिना करने वालों को जो लगती है, उनके चेहरों से वजाहत खत्म हो जाती है, उनके चेहरों से हुस्न खत्म हो जाता है। आज नौजवान हसीन और जमील बनने के लिए कितनी तगोदौ करते हैं। कोई साबुन इस्तेमाल कर रहा है, कोई चेहरा बना रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। खूबसूरती के चक्कर में इंसान हजारों रुपए खर्च करता है, मगर सुन लो, जिना के अड्डों को आबाद करने वालों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसकी चौखट से हुस्न की खैरात तकसीम होती है, वो रसूल फरमाते हैं जिना करने वालों के चेहरों से अल्लाह तबारक व तआला जो है वो वजाहत को छीन लेता है, हुस्न को खत्म कर देता
जाता है, नूरानियत सल्ब कर ली जाती है। फिर कितने ही चेहरे बनाते रहिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हुस्न छीन लिया, खालिके हुस्न जब हुस्न छीन ले तो दुनिया की कौन सी ताकत अब हुस्न दे सकती है? दुनिया की कौन सी ताकत तुम्हारे चेहरे पर जो है वो रंगत अता कर सकती है? अल्लाह अकबर। आकाए करीम फरमाते हैं कि जिना करने वालों को सबसे पहले मुसीबत ये आती है, चेहरों से जो है नूरानियत और हुस्न वजाहत छीन ली जाती है। आज लोगों का हाल ये है, शादियों में चले तो चेहरे बनाकर चले, वलीमा में चले तो चेहरे बनाकर चले, महफिलों में चले तो चेहरे बनाकर चले, मगर याद रखें उदासी जो कुदरत की तरफ से चेहरों पर छाई है वो चेहरे बनाने की बुनियाद पे खत्म नहीं हो सकती। इसीलिए तो फरमाया पाक दामनों के चेहरों से वजाहत झलकती है, वजाहत टपकती है। और फिर अल्लाह वालों की शान तो ये बताई गई कि उनके चेहरे देखो तो खुदा याद आ जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और दूसरी मुसीबत मेरे आका फरमाते हैं, कासिमे नेमत फरमाते हैं, जवानी की दहलीज पर कदम रखकर अपनी मताए ज़िस्त को लुटाने वाले, अपने आप को बीमारियों का शिकार करने वाले नौजवान, अपने आप को तबाही के दहाने तक पहुंचाने वाले नौजवान, दिल के कानों से सुने। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो जिना करता है, दूसरी मुसीबत दुनिया में यह आती है कि अल्लाह उसकी रोजी को काट देता है, वो तंगी रिस्क का शिकार होता है। और मेरे आका सादिक व मसदूक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यहां तक कि इंसान रोटी के टुकड़े को भी मोहताज हो जाता है, इंसान रोटी के टुकड़े को भी मोहताज हो जाता है, खुदा उसको मोहताज कर देता है, जिना मोहताजी लाता है। आज हमारे नौजवान जवानी की दहलीज पर पहुंचकर क्या जिना के अड्डों तक नहीं पहुंचते? जवानी की दहलीज पर क्या कदम रखा? गलत दोस्तों की सोहबत मिली, कभी नशे की तरफ, कभी ज़िना की तरफ। अल्लाह अकबर। यहां तक फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ज़िना करने वाला आज नहीं तो कल अगर वो तौबा न करे, वो रोटी के टुकड़े टुकड़े को मोहताज कर दिया जाएगा। और आपने बड़े बड़े बादशाहों की जिंदगी नहीं पढ़ी जिनके तख्त व ताज का हाल ये था कि जिनके दौरे हुकूमत में लोग कहते थे सूरज गुरूब नहीं होता, बाज ममालिक में गुरूब होता था तो दूसरों में निकल जाता था। जिनकी हुकूमतों का हाल ये था, जब उनकी जिंदगी के आखिरी लम्हात आए तो जिना और बदकारी की बुनियाद पर वो उस मंजिल पर पहुंचे कि जेल के सलाखों के पीछे उनको अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ी और वो रोटी के टुकड़ों को मोहताज हो गए। ये न समझना कि अल्लाह ने जवानी दी है तो मौज मस्ती करे, अल्लाह ने जवानी दी है तो जो जी में आए करे। अल्लाह ने जवानी देकर छोड़ नहीं दिया, हर चीज का एक बार हिसाब हो रहा है कयामत में, और जवानी का 2 मर्तबा हो रहा है। जिस जवानी का हिसाब अल्लाह ने जवानी एक बार देकर 2 बार हिसाब लेना है, उस जवानी को कितनी एहतियात से गुजारना होगा। मेरे आका फरमाते तीसरी नहुसत जानी को यह पहुंचती है कि अल्लाह उसकी उम्र को घटा देता है। लोग सोचते थे पहले कि उम्र कैसे घटती है जिना की वजह से, लेकिन एड्स के मर्ज ने बता दिया कि जिसको वो मर्ज होता है आमतौर पर 6 महीने के अंदर इंसान दुनिया से चलने की तैयारी करने लगता है। मैंने अपनी इस जिंदगी में, इस उम्र में, इतनी उम्र में, 35 साल उम्र में 2 मरीजों को, एड्स के मरीजों को देखा। मैंने उनको इस हालत में मरते देखा कि जब वो कै करते थे तो उनके मुंह से पाखाना निकलता था। 2 लम्हे की लज्जत के लिए इंसान अपनी दुनिया भी तबाह करता है और अपनी आखिरत भी तबाह करता है। हमारे नौजवान ये तसव्वुर करते हैं हम जिना कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, कौन क्या कर लेगा। सुन लो, सादिक व मसदूक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले बता दिया, रोटी के टुकड़ों को भी तरस जाओगे और जिंदगी भी कम हो जाएगी, जिंदगी भी मुख्तसर हो जाएगी, जवानी की बहारें न देख सकोगे। अगर
اگر اس فعل بد کے اندر مبتلا ہوئے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر لرزتے ہوئے دل سے میرے آقا کا یہ فرمان سن لے۔ آقا فرماتے ہیں جب کوئی زنا کرتا ہے وہ اس وقت تو مومن نہیں رہ جاتا، اس کے سینے سے ایمان نکل جاتا ہے اور اس کے سر پر چھتری کی طرح سایہ فگن ہو جاتا ہے۔ اگر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جاتا، بلکہ قیامت کے دن تو اللہ زانیوں پر نگاہ رحمت بھی نہیں فرمائے گا۔